Yes, children, coming to the last part of the chapter and the last numericals of the exercise, starting from 2.23. Yes, question 2.23 says that an electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. There is a technician and he requires overall capacitance कितना होना चाहिए 2 microfarad. And potential difference कितना है, circuit का potential difference is 1000 volt, that is 1 kilovolt or 1000 volt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him. उसके पास बहुत सारे 1 microfarad capacitors हैं, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. और हर एक कैपेसिटर 400 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन नॉट विदस्टैंड. Suggest a possible arrangement that requires a minimum number of capacitors. कम से कम कितने कैपेसिटर्स उसको चाहिए कि उसको ओवरऑल आंसर जो है फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शुड बी 2 माइक्रोफेराड and every capacitance cannot withstand 400 volts, but the overall potential difference across the circuit is 1000 volts, right? So we have studied in the combinations of capacitance that, in the combination of cells, that whatever is the potential between 2 points, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सारे कैपेसिटर्स का या सारे सिस्टम का होगा if they are connected in parallel. So let us assume there are n capacitors connected in series. n कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगाया है और ऐसे n कैपेसिटर्स की 1 2 3 4 m रोज हमने बनाई है. I repeat, there are n capacitors in one line, one row, and such m rows we have placed. We have to find the value of m and n, because m into n will give us the total number of capacitors required. So let n capacitors connected in series with m rows in parallel. M rows in parallel. So potential difference across the series resistance. Series में potential difference should be how much? See, series में the charge remains same, potential difference get distributed. How it get distributed? So potential difference across series combination will be 1000 upon n. क्योंकि ये जो 1000 है, ये जो कॉम्बिनेशन जो हमने 1000 यहाँ पे दिया है, ये 1000 इसके लिए भी होगा, सेकेंड रो के लिए भी, थर्ड रो के लिए भी, फोर्थ रो के लिए भी, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ईच सीरीज, each row in series. So 1000 by n, and ये जो नंबर है it is equal to 400, क्योंकि 400 से ज्यादा it can withstand up to a potential difference not more than 400. So ये जो ratio है it should be equal to 400, not beyond it. So 1000 upon n should be 400. That is n. How many series में हम कितने कैपेसिटर्स लगाएंगे will be equal to the potential difference applied upon the potential difference which a single capacitor can withstand. So this will be 2.5. तो कितने कैपेसिटर लगाएंगे? 2.5. We cannot use capacitor in fraction. So rather than taking this 2.5, we round it off to 3. Capacitors cannot be, कितने कैपेसिटर? 2.5 कैपेसिटर्स नहीं लगा सकते. We have to take it as 3. So let us assume how many capacitors we have connected. We have connected 3. 3 एक रो में लगाने ही पड़ेंगे, right? Now जब हमने 3 कैपेसिटर्स लगाए तो कैपेसिटेंस इन सीरीज क्या होगा? 1 upon cs is 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3. So 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1, that is 3. 1 upon cs कितना आया? 3. तो cs कितना आया? एक रो का cs कितना हो गया? 1 by 3. cs such that will be 1 by 3 because n कितना आया? 3. तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? 1 by 3. नाउ पहली रो का 1 by 3, सेकेंड रो का 1 by 3, थर्ड रो का 1 by 3, m रोज का m इंटू 1 by 3. एंड ओवरऑल कैपेसिटेंस हमें चाहिए कितना? 2 माइक्रोफेराड. सो जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है c प्लस c प्लस c प्लस c, m टाइम्स अगर हम करें तो m टाइम्स cs. एंड व्हाट इज cs? 1 by 3. सो m टाइम्स 1 by 3. और ये टोटल कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? 2, क्योंकि ओवरऑल क्या चाहिए टेक्नीशियन को? उसको 2 कैपेसिटेंस चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए 2. सो m by n इज इक्वल टू 2. n हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो m कितना आ गया? n इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 3, दैट इज 6. मतलब हर एक लाइन में कितने कैपेसिटर्स होंगे? 3. और ऐसी कितनी लाइन्स होंगी, कितनी रोज होंगी? 6. तो कितने कैपेसिटर्स जो है? 3 इंटू 6. सो हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड? 3 into 6, 18 capacitors are required.
so that the equivalent capacitance is 2 माइक्रोफेराड अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज यहाँ पे हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है. सो पहले वाली रो का 1/3, सेकेंड का 1/3, थर्ड का 1/3, हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स. 6 टाइम्स 1/3 क्या होगा? फाइनल आंसर इज 2. तो हमें इन सबका आंसर क्या मिलेगा? 2. इस तरह से हमें शो करना है कि इसको हमने कनेक्ट किया 100 से, एक रो में 3 कैपेसिटर है, कितनी रोज? 6. तो अभी तुम चाहे तो ऐड कर लो, इसका 1/3 है, 1/3 को 6 टाइम्स ऐड करो, 6 into 1/3, आंसर कितना आएगा? 2 microfarad. So that is how we solve such questions. I hope this is clear to you. Indirectly we have to do that. Next question says, what is the area of the plate of 2 farad parallel plate capacitor given that the separation between the plates is 0.5 centimeter? Very simple. Capacitance is given, D is given, in centimeter area has been asked. We know for a parallel plate capacitor epsilon naught A by D, so A will be C into D by epsilon. C हमें दिया है फेराड में, जनरली फेराड में नहीं दिया होता, माइक्रो फेराड या पीको फेराड में होता है, तो इसका एरिया बहुत लार्ज आने वाला है, राइट. 2 into D, अभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1130 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर. 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 का स्क्वायर. 10 की पावर 3 क्या होता है? किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर. सो 1130 किलोमीटर स्क्वायर. इट्स अ वेरी वेरी हाई वैल्यू, यू कैन सी, राइट. Proceeding to the next 2.25, that says that there is a combination, very very important question, many times it has come in board. So there is a combination and what has been asked, a network has been given and it is connected with a 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitor. 4 कैपेसिटर दिए हमें, बहुत सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन लेकिन टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में. सो हमें 4 कैपेसिटर्स दिए हैं और ओवरऑल पोटेंशियल कितना दिया है? 300 वोल्ट्स. सारे कैपेसिटर्स का चार्ज निकालना है और सारे कैपेसिटर्स का पोटेंशियल निकालना है. C1 के लिए Q1 V1 निकालना है, C2 के लिए Q2 V2, इसके लिए Q3 V3 और इसके लिए C4 V4. सबका पोटेंशियल और सबका चार्ज निकालना है. तो सॉल्व करना शुरू करते हैं. जैसा कि हमें सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे बैटरी जुड़ी है तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू नहीं कर सकते, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ से चार्ज डिवाइड हो रहा है. ये दोनों, यहाँ से जो चार्ज गया सेम चार्ज गया, ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में होंगे, राइट. सो C2 C3 सीरीज में 1/200 प्लस 1/200 एलसीएम लिया, सॉल्व किया, सब कुछ करने के बाद इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया 100 पिकोफेराड. जब भी दो इस तरह से जुड़े 1/x प्लस 1/y, तो फाइनल आंसर के लिए हम प्रोडक्ट अपॉन सम भी कर देते हैं, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर 2, नॉट मोर देन 2. सो जब भी तुम्हें 2 दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट कर दो, सम कर दो. पिकोफेराड 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 में है तो आंसर भी किसमें होगा? पिकोफेराड में. प्रोडक्ट अपॉन सम, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का सम, तो हमें इसका आंसर मिल गया 100 पिकोफेराड. मतलब ये क्या हो गया? 100 पिकोफेराड. अभी 100 पिकोफेराड के बाद अगर तुम पॉइंट बी देखो, 100 में जो जाएगा चार्ज वही चार्ज यहाँ पे नहीं जाएगा. यहाँ से चार्ज डिवाइड हो रहा है, यहाँ से चार्ज डिवाइड हो रहा है. सो इन दोनों के आंसर में और इसमें चार्ज डिवाइड हो रहा है और दोनों के राइट जुड़े हैं, दोनों के लेफ्ट जुड़े हैं. तो ये 100 और इन दोनों का आंसर 100 विल बी इन पैरेलल, राइट. सो CS एंड 100 आर इन पैरेलल. दोनों को ऐड कर दिया, C1 प्लस C2, आंसर आ गया 200. इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 200, राइट. सो ये जो 200 होगा, अभी यहां से देखो ये पूरा सॉल्व हो गया, आ गया 200. सेम चार्ज यहां पे जाएगा, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी जॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है. इसका आंसर है 200 और ये 200 और 100 किस में है? फिर से सेम चार्ज जा रहा है तो सीरीज में है. सो 200 और 100 आर इन सीरीज. इन तीनों का आंसर जो कि कितना आया? 200 और 100 आर इन सीरीज. सो हमने क्या किया? 1/C1 प्लस 1/C2 कर लिया या प्रोडक्ट अपॉन सम कर लिया. प्रोडक्ट 200 इन तीनों का आंसर और 100 का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम. तो इसको सॉल्व करने पे आया हमारे पास 200/3 पिकोफेराड. दैट इज द फाइनल आंसर. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है सर्किट का? 200/3 पिकोफेराड. टोटल चार्ज निकालेंगे. अभी टोटल चार्ज से ही हमें इंडिविजुअल चार्ज का पता चलेगा. तो वी नो Q इज इक्वल टू CV. C ये है क्योंकि पिकोफेराड में कन्वर्ट कर लिया फेराड में, इंटू V कितना जुड़ा है? 300 वोल्ट. इससे हमने टोटल चार्ज निकाल दिया और टोटल चार्ज कितना है? 2 × 10⁻8 - 8 कूलम, राइट. अभी ये जो टोटल चार्ज है, क्योंकि ये वाला और इन तीनों का आंसर सीरीज में थे, जितना चार्ज यहां पे होगा उतना ही चार्ज इन तीनों के आंसर में होगा. दिस चार्ज मस्ट बी सेम ऑन C4.
C4 पे और इन तीनों के आंसर में, एंड Cp क्या था, इन तीनों का आंसर था, रिजल्टेंट ऑफ C1 C2 एंड C3। तो Q4 यानी कि ये जो चार्ज था इसका चार्ज कितना होगा, Q के बराबर होगा, सेम चार्ज जा रहा है। सो व्हाट इज Q4, Q4 इज Q, व्हाट इज Q, 2 × 10⁻8। तो हमने पहला आंसर अपना निकाल लिया Q4, राइट। अभी Q इज इक्वल्स टू CV, तो V क्या होगा, Q/C, तो V4 क्या हो जाएगा, Q4/C4। Q4 हमें अभी पता चला, C4 ऑलरेडी दिया है, कन्वर्ट कर दिया माइक्रोफेराड, पिकोफेराड को फेराड में सॉल्व किया, तो हमारे पास V4 कितना आ गया, 200 वोल्ट। मतलब ये जो 300 वोल्ट है इसमें से 200 वोल्ट इसमें चला गया, राइट, एंड रिमेनिंग गया यहां जो भी आंसर में होगा, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 300 वोल्ट है, 200 हमने यहां कंज्यूम कर लिया, तो बचा कितना, 300 - 200, राइट, बिटवीन दीज टू, दैट इज 100 वोल्ट्स। अभी ये 100 वोल्ट्स इसमें और इसमें डिवाइड होगा, दोनों का वैल्यू सेम है 200, तो पोटेंशियल भी इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, राइट। तो ये 100 वोल्ट्स जब इस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो 100 आया, क्योंकि ये दोनों सेम है, इन दोनों में सेम पोटेंशियल डिवाइड होगा, 50 एंड 50, राइट। तो Q1 कितना आ जाएगा हमारा, यस, V1 इज 100 वोल्ट्स। इन दोनों का जो भी आंसर होगा इसमें 100, और वही आंसर, मतलब ये दोनों पैरेलल में थे, ये और इन दोनों का आंसर पैरेलल में थे, तो अगर यहां 100 है तो यहां भी क्या होगा, 100 ही होगा। सो V1 कितना आया, ये पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा और वही इन दोनों के आंसर का होगा, तो V1 कितना आया, 100। V1 से हम क्या निकाल सकते हैं, Q1 इज C1 × V1, C1 × V1, सॉल्व कर लिया, पिको फेराड को फेराड में, आंसर आ गया हमारे पास, दूसरा आंसर आ गया 10⁻⁸, और ये पोटेंशियल आ गया, ये यहाँ पे इसका पोटेंशियल आ गया, तो 1 2 3 4 आंसर आ गए, 4 बाकी हैं अभी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100। एज आई टोल्ड यू दोनों सेम है, तो पोटेंशियल भी इक्वली डिवाइड होगा, तो हमारा ये थर्ड और फोर्थ आंसर भी आ गया, दैट इज 100 विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू दीज टू, 50 एंड 50। दोनों का पोटेंशियल कितना है, V2 और V3 का 50। V2 पता है तो हम Q2 निकाल सकते हैं, C2 × V2, और V3 पता है तो हम Q3 निकाल सकते हैं, C3 × V3, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है और चार्ज कैपेसिटेंस भी सेम है, तो दोनों का चार्ज भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर्स आ गए, चारों का चार्ज आ गया हमारे पास और चारों का पोटेंशियल भी आ गया, राइट। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट 2.26, it says that the plates of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, राइट, separated by a distance d is directly given 2.5 millimeter converting to centimeter, capacitance is connected to a 400 volt supply, V भी दिया है, very simple, so C is epsilon naught A by D, एरिया हमने चेंज कर लिया 9 × 10⁻³ D भी हमने चेंज कर लिया 2.5 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आया 31.86 × 10⁻12, -12 का मतलब पिको फेराड, तो कैपेसिटेंस का आंसर क्या गया, 31.86 पिको फेराड। सेकेंड पार्ट सेज how much is the energy stored, that we have found in the first part. Second part says obtained energy per unit volume, that is the energy density. Energy density क्या होती है हमारी, energy density is, sorry, energy is half CV², so half C जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया into V², तो 31.86 into 10⁻⁻12 into V कितना दिया है, 400 वोल्ट्स, तो हाफ CV² से हमने एनर्जी निकाली 2.55 into 10⁻⁶। सेकेंड पार्ट इज आस्किंग द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, एनर्जी हमने कैलकुलेट किया, एनर्जी अपॉन AD, जब हम तीनों वैल्यूज रखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज 0.113, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज SI यूनिट विल बी जूल पर मीटर क्यूब। थैंक यू चिल्ड्रन। So most of the important type selective questions we have solved for this chapter. Remaining all are very simple and theoretical. We have solved such questions, and spherical capacitor or spherical shell types you may ignore in this chapter, right? Thank you so much.